اردو ناول چراغ عشق۔ رات کی خاموشی میں بارش کی ہلکی بوندیں صحن کی مٹی سے مل کر ایک مدھم سی خوشبو پیدا کر رہی تھیں۔ آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا اور چاند اپنی روشنی کے ساتھ کہیں پیچھے چھپ گیا تھا۔ حویلی کے بڑے دروازے پر آویزاں چراغ دھیرے دھیرے جھول رہا تھا، جیسے ہوا کہ سنگ کوئی پرانی داستان سنا رہا ہو۔ اندر صحن کے ایک کونے میں ایک نوجوان لڑکی نیند تاریکی میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہونٹ خاموش۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پرانا خط پکڑے بیٹھی تھی، جس پر وقت کے دھبے پڑ چکے تھے۔ یہ خط اس کے دل کی وہ کہانی تھا جسے وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس شخص کی یاد تھی جس نے اس کی زندگی میں محبت کا پہلا چراغ روشن کیا تھا، مگر پھر اچانک اندھیروں میں چھوڑ گیا۔ اس کا نام حنان تھا۔ حنان وہ شخص جو گاؤں کا سب سے خوبصورت خواب تھا اور جس کی مسکراہٹ میں زندگی کی گرمی اور بہار کی خوشبو تھی۔ حنان اور عنایا کی پہلی ملاقات کسی فلمی سین کی طرح نہ تھی، بلکہ ایک بالکل عام دن میں ہوئی تھی، جب گاؤں کے بازار میں وہ آٹے کا تھیلا اٹھاتے ہوئے لڑکھڑا گئی تھی اور کسی نے پیچھے سے آ کر سہارا دیا تھا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چہرہ پہلی بار اس کی زندگی میں روشنی بن کر ابھرا۔ حنان نے صرف ایک مسکراہٹ دی تھی اور چلا گیا، مگر اس ایک لمحے نے عنایا کے دل میں ایک نیا احساس بیدار کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ چھوٹے گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کو جلد پہچان لیتے ہیں۔ وہ اکثر کہیں نہ کہیں آمنے سامنے آ جاتے، کبھی کنویں پر پانی بھرتے وقت، کبھی کھیتوں کے کنارے، کبھی کسی شادی کی محفل میں، مگر دونوں کے بیچ کوئی لفظ نہ ہوتا، صرف آنکھوں کا سلام ہوتا اور دل کی دھڑکنوں کا شور۔ عنایا جانتی تھی کہ اس کا باپ سخت مزاج اور روایت پسند آدمی ہے۔ وہ کسی بھی اجنبی سے تعلق کی اجازت نہیں دے گا، چاہے وہ تعلق کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو۔ لیکن محبت کسی اجازت کی محتاج کب رہی ہے؟ وہ تو خاموشی میں بھی پنپتی ہے، اور خاموشی میں ہی آنکھوں سے آنکھوں تک سفر کرتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں افواہ اڑی کہ حنان شہر جانے والا ہے۔ یہ خبر عنایا کے دل پر بجلی بن کر گری۔ سے لگا جیسے چراغ کی لو ابھی ابھی روشن ہوئی تھی اور ہوا کہ ایک جھونکے سے بجھنے والی ہے۔ اس رات عنایا سو نہ سکی۔ صبح اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ حنان سے بات کرے گی، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ اگلے دن بارش ہو رہی تھی۔ کیچڑ سے بھری پگڈنڈی پر وہ چھتری لیے چل رہی تھی، جب دور سے حنان آتا دکھائی دیا۔ اس نے پہلی بار قدم روکے، دل کی دھڑکنیں سنبھالی اور آہستہ سے کہا، اب شہر جا رہے ہیں۔ حنان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں، لیکن شاید واپس آ جاؤں۔ عنایا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اب چلے گئے تو یہ گاؤں سنسان ہو جائے گا۔ حنان کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی اتر آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بارش کی بوندوں نے دونوں کے بیچ ایک خاموش پردہ ڈال دیا۔ بس ایک نظر، ایک وعدہ اور ایک ادھورا لمس، اور پھر وہ لمحہ گزر گیا۔ لیکن عنایا نہیں جانتی تھی کہ اس بارش کے ساتھ جو کہانی شروع ہوئی ہے، وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے تکلیف دہ سفر بننے والی ہے۔ بارش کے اگلے دن گاؤں کی فضا میں نمی اور ٹھنڈک کی ہلکی لہر تھی۔ کھیتوں کی مٹی سے مہک اٹھ رہی تھی اور آم کے درختوں پر پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ عنایا صحن میں چولہے کے پاس بیٹھی مٹی کے پیالے میں سبزی کاٹ رہی تھی، مگر اس کا دل اور دماغ کہیں اور تھے۔ ہر کٹ کے ساتھ اس کے ذہن میں وہی ایک لمحہ گونج رہا تھا، حنان کا چہرہ، اس کی سنجیدگی، اور وہ ادھورا جملہ جو بارش نے چھین لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ جملہ سن لیتی تو شاید اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا۔ لیکن اب بس انتظار تھا، انتظار کہ وہ واپس آئے گا، کوئی خبر لائے گا۔ مگر گاؤں کے لوگ جانتے تھے، شہر جانے والا اکثر واپس نہیں آتا۔ دوپہر کے وقت عنایا کی ماں نے اسے بازار بھیجا۔ گاؤں کے بازار میں ہمیشہ کی طرح ہلچل تھی۔
औरतें सब्जी खरीद रही थीं, बच्चे गिने का रस पी रहे थे और मर्द बैल गाड़ियों पर बैठे गुपशप कर रहे थे। अनाया ने सब्जी ली और वापसी पर अचानक रुक गई। एक दुकान के बाहर वही पुराना लकड़ी का बेंच था जहां कभी हन्नान अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। अब वो बेंच खाली था, मगर उस पर बारिश का पानी जमा हुआ था, जैसे वक्त भी रुक सा गया हो। अनाया का दिल भर आया। वो धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगी, लेकिन रास्ते में इसे एक छोटा सा बच्चा मिला जिसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था। बच्चा उसे देखकर बोला, ये आपके लिए है। अनाया ने हैरानी से कागज लिया। इस पर चंद लफ्ज लिखे थे, मैं वापस आऊंगा जब चिराग़ इश्क बुझने ना पाए। ये हन्नान की लिखाई थी। उसने दिल से महसूस किया जैसे कागज पर लिखे ये अल्फाज किसी दुआ की तरह उसकी रूह में उतर गए हों। अगले कई दिन अनाया ने इसी उम्मीद में गुजारे कि हन्नान लौट आएगा, लेकिन वक्त गुजरने लगा और हर दिन के साथ इस उम्मीद की लो मध्यम होने लगी। गांव के लोग इससे सवाल करते, इशारे करते। कुछ औरतें तो चुपके चुपके कहती कि हन्नान शायद शहर में किसी और को चाहने लगा है। अनाया सुनकर मुस्करा देती, मगर दिल के अंदर एक तूफान उठता। एक शाम वो दरिया के किनारे बैठी सूरज डूबते देख रही थी। आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी, पानी लहरों में झिलमिल कर रहा था। अचानक उसके करीब एक बुजुर्ग फकीर आ बैठा। उसने अनाया को गौर से देखा और बोला, बेटी, जो चिराग इश्क से जलता है, इसे आंधियां भी बुझा नहीं सकती, मगर शर्त यह है कि तुम्हारा दिल शक से पाक हो। अनाया ने खामोशी से फकीर की बात सुनी, मगर जवाब ना दिया। वो जानती थी कि ये मोहब्बत अब इसके लिए इम्तिहान बनने वाली है और शायद हन्नान की वापसी आसान नहीं होगी। इस रात ख्वाब में इसे हन्नान दिखाई दिया। वो बारिश में खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा गम था। उसने हाथ बढ़ाया जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर धीरे धीरे धुंध में गुम हो गया। अनाया नींद से जाग उठी, दिल की धड़कन तेज थी। वो जान गई कि ये मोहब्बत एक आम कहानी नहीं बनने वाली। शहर की गहमा गहमी और गांव की खामोशी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हन्नान अब इसी शोर और रोशनियों के बीच था। बसों के हॉर्न, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और ऊंची इमारतों के साथ सब कुछ नया था, मगर दिल के किसी कोने में गांव की मिट्टी की खुशबू और अनाया की आंखें अभी तक जिंदा थीं। हन्नान शहर में काम की तलाश में आया था। उसे एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। सुबह से शाम तक मशीनों के शोर में वक्त गुजर जाता, मगर रात को वो छत पर जाकर आसमान देखता और सोचता कि शायद इसी आसमान के नीचे कहीं अनाया भी बैठी इसे याद कर रही हो। इसके पास वो कागज का पुराना टुकड़ा भी था जिस पर उसने चिराग़ इश्क वाली बात लिखी थी। वो हर रात उसे जेब से निकाल कर देखता, जैसे ये इसका हौसला हो। उधर गांव में अनाया का हाल कुछ और था। दिन भर घर के कामों में लगे रहना, मगर दिल का एक हिस्सा हर पल हन्नान की वापसी का इंतजार करना। ये इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। माँ ने कई बार इशारा किया कि अब उसे शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए, मगर अनाया हर बार खामोश हो जाती। इसे डर था कि एक दिन जबरदस्ती कोई फैसला ना हो जाए। एक शाम गांव में खबर आई कि शहर से एक आदमी आया है जो हन्नान को जानता है। अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दूर से इस शख्स को देखा। वो मस्जिद के बाहर चंद मर्दों से बात कर रहा था। अनाया ने छप कर सुना। इस शख्स ने कहा, हन्नान अच्छा लड़का है, मगर शहर में जिंदगी आसान नहीं। सुना है वहां किसी मकान में रहता है और दिन रात मेहनत करता है। ये सुनकर अनाया के दिल को कुछ सुकून मिला कि कम अज कम वो ठीक है। लेकिन अगली बात ने इसके दिल में चुभन पैदा की। इस शख्स ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, मगर लोग कहते हैं कि इसके साथ एक लड़की को अक्सर देखा जाता है। अनाया का दिल जैसे बैठ गया।
शक की एक छोटी सी चिंगारी अंदर जल उठी। उसने फौरन अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि शायद यह महज गांव की पुरानी आदत है, अफवाहें उड़ाना। लेकिन इस रात वो सो ना सकी। फकीर की बात याद आ रही थी, शर्त यह है कि दिल शक से पाक हो। शहर में भी हालात बदलने लगे थे। फैक्ट्री में एक लड़की, नीलम, जो साथ काम करती थी, अक्सर हन्नान से बात करने लगी। वो खुश मिजाज थी, शहर के अंदाज वाली, और हन्नान की मेहनत को सराहती थी। हन्नान उसे सिर्फ एक साथी के तौर पर देखता, मगर नीलम की आंखों में कुछ और था। एक दिन नीलम ने हंसते हुए कहा, हन्नान, तुम गांव के लोग बड़े अजीब होते हो। एक ही चेहरा दिल में बसा लेते हो, चाहे सालों गुजर जाए। हन्नान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि हम चिराग एक बार जलाते हैं और फिर बुझने नहीं देते। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि गांव में इसके नाम के साथ शक की कहानी जड़ रही है, और अनाया के दिल में पहली बार यकीन और मोहब्बत के बीच एक दरार आने वाली है। रात के पिछले पहर गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सहन में जलता दिया टिमटिमा रहा था और अनाया चारपाई पर करवटें बदल रही थी। नींद जैसे रूठ गई थी। इसके कानों में बार बार वही जुमला गूंज रहा था, उसके साथ एक लड़की को अक्सर देखा जाता है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह महज गांव की रिवायती गुपशप है, मगर दिल किसी जिद्दी बच्चे की तरह मानने को तैयार न था। एक पल को उसे याद आया कि जब वो बारिश में हन्नान से मिली थी, इसकी आंखों में कितना यकीन और खुलूस था। वो चिराग जो उसने जलाया था, क्या वाकई बुझने लगा है या ये सिर्फ हुआ का धोखा है? अगली सुबह अनाया के दरवाजे पर एक अजनबी डाकिया आया। इसके हाथ में एक लिफाफा था, जिस पर शहर का पता दर्ज था। दिल की धड़कन तेज हुई। उसने फौरन लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, हन्नान का। खत में लिखा था, अनाया, यहाँ की जिंदगी मुश्किल है, मगर तुम्हारी याद हर मुश्किल को आसान बना देती है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि एक दिन तुम्हें इज्जत से अपना घर ला सकूं। जब थक जाता हूं तो तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे हौसला देती। बस दुआ करना कि मेरा चिराग कभी बुझ ना पाए। खत पढ़कर अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल को डांटा कि वो शक के अंधेरे में क्यों भटक रही थी। मगर किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। खत के साथ एक छोटा सा पुराना अखबार का टुकड़ा भी लिफाफे में मौजूद था, शायद गलती से आ गया हो। इस पर एक तस्वीर थी फैक्ट्री के सालाना प्रोग्राम की, जिसमें हन्नान स्टेज पर खड़ा था और उसके साथ नीलम, मुस्कराती हुई। ये मंजर देखकर अनाया के दिल में वो चिंगारी फिर से भड़क उठी। क्या ये वही लड़की है जिसका जिक्र लोग कर रहे थे? क्या खत की मीठी बातें और तस्वीर का सच एक दूसरे से अलग है? शहर में इसी रात नीलम ने हन्नान से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी तस्वीर अखबार में आई है। हन्नान ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, हाँ, बस एक तकरीब थी। नीलम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, काश तुम जानते कि कुछ तस्वीरें लफ्जों से ज्यादा कहानियां सुनाती हैं। हन्नान ने इसकी बात को हंसकर टाल दिया, मगर वो नहीं जानता था कि यही तस्वीर अब गांव में अनाया के दिल में शक का बीज बो चुकी है। अनाया ने खत को सीने से लगाकर आंखें बंद कीं, मगर नींद आने की बजाय दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंजता रहा। क्या हन्नान अब भी मेरा है, और वो चिराग किसी और के सहन में जलने लगा है? गांव के दिन तेजी से गुजर रहे थे, मगर अनाया के लिए हर दिन पहले से ज्यादा भारी होता जा रहा था। हन्नान का खत और वो अखबार की तस्वीर उसके दिल में एक अजीब जंग छेड़े हुए थी। एक तरफ खत के मीठे लफ्ज, दूसरी तरफ तस्वीर की तल्ख हकीकत, और दरमियान में एक ऐसा सुकूत जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक था। शाम को वो कुनवे के पास पानी भर रही थी कि उसकी सहेली महरीन आ गई। महरीन ने धीरे से कहा, अनाया, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें हमेशा सच बताया है। अनाया ने घबराकर उसकी तरफ देखा।
शहर से मेरे चचा आए हैं, वो हन्नान की फैक्ट्री के करीब रहते हैं। उन्होंने बताया कि हन्नान अक्सर एक लड़की के साथ नजर आता है और वो लड़की खूबसूरत भी है और आजाद मिजाज भी। ये सुनकर अनाया के हाथ कांप गए। पानी का घड़ा हलकर गिरने को था कि महरीन ने संभाल लिया। अनाया ने कुछ न कहा, बस खामोशी से घर की तरफ चल दी। रास्ते भर उसे वो फकीर की बात याद आती रही कि दिल शक से पाक हो, मगर अब शक एक जहर की तरह इसके वजूद में फैल चुका था। इसी रात उसने हन्नान को खत लिखने का फैसला किया। वो चाहती थी कि सब कुछ साफ हो जाए, चाहे सच कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। उसने लिखा, हन्नान, तुम्हारा खत मिला, मगर उसके साथ एक तस्वीर भी थी। शायद ये महज एक तकरीब की हो, मगर गांव में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल में मेरा चिराग अब भी जल रहा है तो मुझे सच बताओ। खत लिखकर उसने अगली सुबह डाकिये के जरिए शहर भेज दिया। अब बस इंतजार था, मगर ये इंतजार भी जल्द ही अजियत में बदल गया, क्योंकि एक हफ्ता गुजरने के बावजूद कोई जवाब न आया। शहर में दूसरी तरफ हन्नान का हाल भी अजीब था। फैक्ट्री में अचानक एक हादसा हो गया था, जिसमें इसके हाथ को मामूली चोट आई, मगर इस वजह से वो कई दिन तक डाक खाने नहीं जा सका। नीलम इस दौरान उसके जख्म पर पट्टी बांधती रही और ये मंजर फैक्ट्री के कई लोग देखते रहे। इनमें से कुछ ने तस्वीरें भी खींच ले। एक दिन नीलम ने मजाक में कहा, देखो हन्नान, लोग तो अब हमें जोड़ी समझने लगे हैं। हन्नान ने हंस कर कहा, लोग कुछ भी सोच ले, मैं जानता हूं कि मेरा दिल कहाँ है। मगर वो ये नहीं जानता था कि गांव में एक और तस्वीर पहुंचने वाली है, वो तस्वीर जिसमें वो और नीलम हंस रहे हैं और नीलम इसके हाथ पर पट्टी बांध रही है। ये तस्वीर गांव में पहुंचते ही अनाया के दिल पर आखिरी ज़र्ब लगाने वाली थी। अनाया ने तस्वीर देखी तो इसका रंग फक हो गया। उसने धीरे से कहा, शायद मेरा चिराग बुझ चुका है। रात का वक्त था। गांव में चांदनी फैल चुकी थी, मगर अनाया के सहन में अंधेरा सा छाया हुआ था। उसने चिराग जलाया, मगर दिल का अंधेरा किसी रोशनी से कम नहीं हो रहा था। सामने लकड़ी की मेज पर वो तस्वीर पड़ी थी जिसने इसके अंदर का सुकून छीन लिया था। हन्नान और वो लड़की नीलम हंस रहे थे और नीलम का हाथ हन्नान के हाथ पर था। तस्वीर में दोनों के चेहरों पर वो कुर्बत थी जो सिर्फ एक दूसरे के लिए होती है। अनाया इस तस्वीर को देखती रही। दिल के किसी कोने में उम्मीद अभी जिंदा थी कि शायद ये सब महज गलत फहमी हो, मगर अल्फाज, तस्वीरें और गांव के लोगों की बातें मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर चुके थे जिसके पार वो यकीन को देख नहीं पा रही थी। इस रात वो देर तक चारपाई पर बैठी रही। आसमान पर चांद अपनी रोशनी बखेर रहा था, मगर अनाया के दिल का चांद बादलों में छप चुका था। कई बार उसने सोचा कि काश वो ये सब न देखती, आकाश उसने वो तस्वीर आने से पहले ही हन्नान के बारे में फैसला कर लिया होता। मगर किस्मत ने शायद इसे इस इम्तिहान के लिए चुना था। अगली सुबह अनाया की मां ने देखा कि वो बहुत खामोश है। बेटी, क्या बात है? तबीयत ठीक है ना? अनाया ने जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ कहा, जी अम्मा, ठीक हूं, मगर मां की आंखें सब कुछ पढ़ चुकी थीं। वो जानती थी कि बेटी के दिल में कोई तूफान चल रहा है, मगर उसने सवाल न किया। गांव में बेटियों के दिल के तूफान अक्सर खामोशी में ही डूब जाते हैं। दिन गुजरते जा रहे थे और हन्नान का जवाब न आया। हर गुजरते दिन के साथ अनाया का दिल हन्नान से दूर होता जा रहा था। इसके अंदर एक जंग थी, यकीन और शक की जंग, जिसमें शक जीतता जा रहा था। एक दिन शाम को गांव के चौक में शोर हुआ। गांव के सरपंच के घर से खबर आई कि उनके रिश्तेदार शहर से आए हैं और वो हन्नान को जानते हैं। अनाया का दिल धड़कने लगा। वो भीड़ में शामिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता करीब जाकर सुनने लगी। शहर से आए शख्स ने कहा, हन्नान अच्छा लड़का है,
مگر شہر میں رہتے رہتے آدمی بدل جاتا ہے۔ اب اس کی فیکٹری میں ایک لڑکی ہے، نیلم نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں اکثر ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر انایا کے اندر جیسے کوئی شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس نے چپ چاپ وہاں سے واپسی کی رالی۔ اس رات وہ تنہا دریا کے کنارے جا بیٹھی۔ پانی کے بہاؤ کی آواز میں اسے اپنا دل سنائی دے رہا تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر حنان نے واقعی کسی اور کو چن لیا ہے تو کیا اسے خود کو پیچھے ہٹا لینا چاہیے یا لڑنا چاہیے؟ مگر محبت کا میدان جنگ نہیں ہوتا۔ وہاں تو دل جیتے جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک اور طوفان آ گیا۔ وہ تصویر جو فیکٹری میں کھینچی گئی تھی اب تقریباً ہر کسی کے ہاتھ میں تھی۔ مہرین بھی ایک شام اس کے پاس آئی، تصویر انایا کو دکھائی اور کہا، دیکھ لو، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ انایا نے تصویر دیکھی، کچھ نہ کہا۔ اس نے بس تصویر کو اپنی چادر کے نیچے رکھا اور گھر آ گئی۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ حنان سے کوئی سوال نہیں کرے گی۔ جواب ملے یا نہ ملے، اس کا چراغ اب خود ہی بجھ جائے گا۔ شہر میں حنان کی زندگی بالکل مختلف رخ پر جا رہی تھی۔ فیکٹری کا کام بڑھ گیا تھا اور اس دوران نیلم اس کی مدد کرتی رہی۔ وہ کبھی کبھی مذاق میں کہہ دیتی، حنان، تمہارا دل تو کہیں گاؤں میں رہ گیا ہے، مگر تمہاری مسکراہٹ یہی ہے۔ حنان ہنس کر جواب دیتا، میرا دل اور مسکراہٹ دونوں ایک ہی جگہ ہے۔ ایک دن حنان ڈاک خانے گیا تو اسے ایک خط ملا۔ لفافہ کھولا تو انایا کا خط تھا جس میں وہ تصویر اور گاؤں کی باتوں کا ذکر تھا۔ خط پڑھتے ہی حنان کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً جواب لکھنے کی کوشش کی مگر ڈاک خانہ بند ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ خط بھیجنے گیا مگر دل میں ڈر تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ چند دن بعد گاؤں میں انایا کے گھر رشتہ لے کر ایک اور خاندان آ گیا۔ اس بار یہ رشتہ گاؤں کے ہی ایک عزت دار مگر ضدی مزاج آدمی کے بیٹے کا تھا۔ انایا کے باپ نے بغیر اس کی مرضی پوچھے ہاں کر دی۔ انایا نے احتجاج کرنا چاہا مگر اس کے باپ نے کہا، بیٹی، محبت کا پیٹ نہیں بھرتا، زندگی عزت اور سہارے سے چلتی ہے۔ انایا نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اب یہی تقدیر ہے۔ حنان کا خط اس وقت پہنچا جب رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ خط میں اس نے سب کچھ صاف کر دیا تھا۔ انایا، تصویر محض ایک تقریب کی تھی۔ نیلم صرف ایک ساتھی ہے۔ تمہارے سوا کوئی نہیں جسے میں نے چاہا ہو۔ میں ہر مشکل برداشت کر لوں گا مگر تمہارے بغیر جینا نہیں۔ خط پڑھ کر انایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اب وہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے خط کو اپنی چادر میں چھپایا اور دل میں کہا، شاید ہمارا چراغ جلانے کے لیے دیر ہو گئی۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ گاؤں میں ہر طرف رونق تھی مگر انایا کے لیے یہ سب رنگ پھیکے تھے۔ دوسری طرف حنان نے گاؤں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کے سامنے سچ بتائے اور انایا کو اپنا لے۔ شادی سے 2 دن پہلے حنان گاؤں پہنچا۔ اس نے سیدھا انایا کے گھر کا رخ کیا۔ دروازے پر مہرین کھڑی تھی۔ اس نے حنان کو دیکھتے ہی کہا، اب آنے کا کیا فائدہ؟ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ حنان نے جواب دیا، جب تک سانس ہے کچھ ختم نہیں ہوتا۔ اس رات گاؤں میں ایک ہلچل مچ گئی جب حنان نے سرپنچ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں انایا سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس کے حق میں بولے، کچھ خلاف۔ انایا کے باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ رشتہ اب نہیں ہو سکتا۔ انایا خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ حنان کی آنکھوں میں وہی پہلی ملاقات والا یقین تھا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، محبت کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔
और मेरा फैसला हन्नान है। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ औरतों की सरगोशियां और मर्दों की नजरें, मगर अनाया ने पहली बार खौफ के बजाय सुकून महसूस किया। हन्नान ने इसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो किसी भी चिराग से ज्यादा रोशन थी। शायद मोहब्बत का चिराग तभी बुझता है जब दोनों में से कोई एक हार मान ले, और अनाया ने हार न मानने का फैसला कर लिया था। रात की खामोशी में सबा के कमरे की खिड़की से ठंडी हुआ अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी जो शायद इसने शाम को लगाए हुए इत्र से आ रही थी, मगर उसके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकूत और हलचल एक साथ थी। अहमद की यादें उसे एक पिलचीन लेने नहीं देती थीं। पिछली मुलाकात के बाद इसके दिल में उम्मीद के चिराग रोशन तो हुए थे, मगर साथ ही एक अनजाना खौफ भी था कि कहीं ये रोशनी फिर किसी तेज हवा में बुझ न जाए। अहमद इस दिन के बाद कई दिनों तक सबा से नहीं मिल सका। कारोबारी मसरूफियात और घर की जिम्मेदारियों ने जैसे इसे जकड़ लिया था। लेकिन हर रात जब वो अपने कमरे में अकेला होता, सबा की मुस्कुराहट, इसकी नजरें और वो संजीदा लहजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता। इसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आता, क्या मैं वाकई उसके लायक हूं? उधर सबा भी अपनी उलझनों में घिरी हुई थी। अम्मा के सवालात बढ़ते जा रहे थे। रिश्ते के लिए आने वाली खाला ने फिर से फोन किया था। अम्मा ने साफ कह दिया कि अब फैसला कर, वरना मैं इनकार कर दूंगी। सबा खामोश रही, लेकिन दिल में एक ही आवाज थी, मैं किसी और की नहीं हो सकती। इस शाम जब सबा छत पर चहल कदमी कर रही थी, नीचे गिली में से एक मानूस आवाज ने इसे चौंका दिया। वो अहमद था। शायद वो किसी काम से आया था, मगर जब उसने ऊपर देखा और सबा को पाया, तो जैसे दोनों के चेहरों पर एक लम्हे के लिए जिंदगी लूट आई। अहमद ने हल्का सा हाथ हिलाया और सबा ने नजरें चरा ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। रात को सबा के फोन पर मैसेज आया, कल पार्क में मिल सकोगी? सबा ने दिल की धड़कन संभालते हुए जवाब दिया, हाँ। अगले दिन वो दोनों इसी पुराने पार्क में मिले जहां कई माह पहले पहली बार अहमद ने इससे खुलकर बात की थी। आज अहमद के चेहरे पर कुछ और ही संजीदगी थी। सबा, मैं जानता हूं कि वक्त कम है और हालात हमारे हक में नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं सब कुछ करके तुम्हें अपना लूंगा। बस तुम मेरा साथ देना। अहमद की आंखों में अज़्म की रोशनी थी। सबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अहमद, मैंने तुम्हें अपना फैसला कब का दे दिया है, तुम बस अपने वादे पर कायम रहना। ये लम्हा दोनों के लिए एक नए हौसले का बाइस बना। मगर किस्मत अभी भी खामोश तमाशाई थी और उसकी चालें वो दोनों नहीं जानते थे। अगले ही हफ्ते अहमद के घर में एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। इसके वालिद की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कारोबार भी खसारे में जाने लगा। अहमद ने अपनी सारी तवज्जो घर पर लगा दी और सबा फिर से इंतजार के अंधेरों में डूब गई। इन दिनों में सबा की जिंदगी जैसे रुक गई थी। वो रोजाना शाम को खिड़की से बाहर देखती, शायद अहमद का कोई पैगाम आ दीदार हो जाए, मगर अक्सर रात खामोश गुजर जाती। कभी कभार फोन पर मुख्तसर बात हो जाती, मगर वो पहले जैसी कुर्बत और तसल्ली नहीं मिलती थी। एक दिन अहमद का फोन आया। इसकी आवाज थकी हुई और बोझल थी। सबा, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, एक जरूरी बात है। अगले दिन जब वो दोनों मिले, अहमद ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये सब खत्म हो या फिर हमेशा के लिए शुरू हो। ये अल्फाज सुनकर सबा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। अहमद ने गहरी सांस ली। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें प्रपोज करने जा रहा हूं। सबा के चेहरे पर खुशी के साथ आंसू आ गए, मगर दिल के किसी कोने में खौफ भी था। ये मोहब्बत अब एक फैसला कुन मोड़ पर थी और किस्मत का इम्तिहान अभी बाकी था। रात के इस पहर शहर की गलियां सुनसान थीं, सिर्फ कहीं कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आती थी या किसी पुरानी इमारत के खिड़की के पिटहुआ में हिलते हुए चरचर करते थे।
हिना अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई थी। दिन भर की मसरूफियात और लोगों के बीच रहने के बावजूद उसके दिल में जो तन्हाई का खला था, वो अब मजीद गहरा महसूस हो रहा था। दिल के किसी कोने में राहील की याद हल्की हल्की दस्तक दे रही थी। वो दिन जब इसने पहली बार उसे देखा था, जब एक अजनबी चेहरा किसी मानूस ख्वाब की तरह आंखों के सामने आया था, वो लम्हे अब जैसे फिर से जिंदा हो गए थे। मगर साथ ही ये हकीकत भी थी कि वो राहील से दूर थी, इतनी दूर के चाहने के बावजूद कुछ कहा कर नहीं सकती थी। दूसरी तरफ राहील की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो शहर के दूसरे हिस्से में एक पुराने फ्लैट में अकेला बैठा था। मेज पर अधूरा चाय का कप पड़ा था और सामने खुली डायरी में कुछ अल्फाज बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने दिल के जख्म को लफ्जों के जरिए सहलाने की कोशिश की हो। वो हिना के बारे में सोचते सोचते अक्सर अपने अंदर एक जंग लड़ता रहता था, जज्बात और हकीकत के बीच की जंग। इस दौरान कहानी में एक नया मोड़ इस वक्त आया जब राहील के पुराने दोस्त फहद ने इसे अचानक फोन किया। फहद ने बताया कि इसके पास एक ऐसा राज है जो सब कुछ बदल सकता है। राहील पहले तो उलझ गया, मगर फहद की संजीदा आवाज ने इसे बेचैन कर दिया। वो फौरन अगले दिन मिलने पर राजी हो गया। अगले दिन एक छोटे से कैफे में उनकी मुलाकात हुई। फहद ने कुछ देर खामोश रहने के बाद एक लिफाफा राहील के सामने रखा। लिफाफा खोलते ही राहील की आंखें हैरत से फैल गईं। इसमें हिना की कुछ तस्वीरें थीं जिनमें वो किसी नामालूम शख्स के साथ थी। मगर राहील की हैरत गुस्से में बदल गई जब उसने देखा कि उन तस्वीरों में हिना की मुस्कुराहट में कुछ मजबूरी और खौफ छुपा हुआ है। ये सब किसने किया? राहील की आवाज भारी हो गई। फहद ने धीमी आवाज में कहा, जिस शख्स को तुम दुश्मन नहीं समझ रहे, वही तुम्हारे और हिना के बीच सब कुछ बर्बाद कर रहा है। उधर हिना को खबर मिली कि कोई इसके बारे में झूठी बातें फैला रहा है। मोहल्ले में सरगोशियां बढ़ने लगीं और उसकी मां का रवैया भी बदलने लगा। वो रात रात जाग कर सोचती रहती कि आखिर किसने इसकी जिंदगी को इस दलदल में धकेल दिया। कुछ दिन बाद राहील ने फैसला किया कि वो बराह रास्त हिना से बात करेगा। मगर जब वो इसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक अजनबी शख्स खड़ा था जो खुद को हिना का रिश्तेदार बता रहा था। इसकी नजरें अजीब सी सख्ती लिए हुई थीं, जैसे वो राहील को वहां नहीं देखना चाहता था। रास्ता मसदूद होने पर राहील ने एक और तरीका इख्तियार किया। उसने एक खत लिखा जिसमें सब कुछ सच्चाई के साथ बयान किया और इसे फहद के जरिए हिना तक पहुंचा दिया। खत पढ़ते हुए हिना की आंखों से आंसू बह निकले। इसे लगा जैसे कोई इसके दिल के अंदर झांक कर उसका दुख महसूस कर रहा हो। अब दोनों जानते थे कि कोई तीसरा शख्स उनके दरमियान रुकावट बन रहा है। सवाल ये था कि वो कौन है और क्यों? मगर कहानी का ये राज अभी खिलना बाकी था। रात के आखिरी पहर हिना ने खिड़की से बाहर देखा। चांद आधा छप चुका था, मगर उसकी रोशनी में एक उम्मीद की किरण अब भी चमक रही थी। इसे महसूस हुआ कि मोहब्बत का चिराग अभी बुझा नहीं, बस तूफान के थमने का इंतजार है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन माहम के दिल में सुकून का हल्का सा चिराग जल रहा था। कई दिनों के बाद पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत का बोझ कुछ कम हो रहा है। जैद की बातें, इसका लहजा और उसकी आंखों की सच्चाई माहम के दिल पर नक्श हो चुकी थी। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ भी जागा हुआ था, जैसे खुशियों के बाद कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जैद ने अगले दिन माहम को फोन किया। वो पहले पहल थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर बात करने लगी। इन दोनों के दरमियान अब वो रस्मी पर्दा नहीं रहा था। जैद कभी इसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी बचपन की शरारतों पर बात करता और कभी अपनी जिंदगी के वो राज बताता जो शायद किसी और को नहीं पता थे। माहम को एहसास हो रहा था कि वो इस शख्स के साथ अपने दिल की दुनिया खोल रही है जो उसे कभी धोखा नहीं देगा। उधर अहसन भी खामोश नहीं बैठा था।
इसकी नज़रें अब भी माहम पर जिमी हुई थीं। वो जानता था कि माहम के दिल में किसी और के लिए जगह बन रही है और ये बात इसे जला रही थी। उसने कई बार कोशिश की कि माहम को किसी तरह अपनी तरफ माइल करे, लेकिन हर बार माहम की ठंडी मुस्कुराहट और साफ जवाब उसे शिकस्त का एहसास दिला देते। एक दिन यूनिवर्सिटी में अचानक एहसन ने जैद को रोक लिया। दोनों के बीच एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर एहसन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम समझते हो कि माहम तुम्हें पसंद करने लगी है। तुम नहीं जानते वो लड़की किस कदर नाजुक है, और नाजुक चीजें हमेशा टूट जाती हैं। जैद ने गहरी नज़र से इसकी तरफ देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, मैं इसे तोड़ने नहीं आया, मैं इसे संभालने आया हूं। ये सुनकर एहसन के चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई, मगर वो कुछ बोले बगैर वहां से चला गया। घर आकर माहम ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी लगता है कि मोहब्बत एक रोशनी है, लेकिन जब ये रोशनी ज्यादा तेज हो जाए तो आंखें चिंधिया जाती हैं। क्या ये रोशनी मुझे महफूज रखेगी या जला देगी? इस रात उसने जैद को मैसेज किया, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या तुम मुझे तलाश करोगे? जैद ने फौरन जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दुनिया के आखिरी किनारे तक जाऊंगा। ये अल्फाज पढ़कर माहम की आंखों में नमी आ गई। वो जानती थी कि ये रिश्ता नाजुक है, लेकिन दिल की दुनिया में कभी कभी अक्ल की नहीं चलती। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक वाकया ने सब कुछ बदल दिया। माहम लाइब्रेरी में बैठी थी जब एक लड़की ने आकर कहा, जैद तुम्हारे बारे में कुछ लोगों से लड़ रहा है। माहम तेजी से बाहर निकली तो देखा कि एहसन और जैद के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हो रही है। एहसन गुस्से में जैद को धमकियां दे रहा था, जबकि जैद इसे बार बार कह रहा था कि माहम का नाम अपनी जबान पर ना लाए। माहम ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एहसन का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने आखिरी जुमला कहा, देख लेना जैद, तुम्हें इस मोहब्बत का ऐसा अंजाम दिखाऊंगा कि याद रखोगे। फिर वो वहां से चला गया। जैद ने माहम की तरफ देखा, इसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक गहरी फिक्र भी थी। ये शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है माहम, तुम्हें एहतियात करनी होगी। माहम ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूं जैद, बस वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जैद ने इसके हाथ को मजबूती से थामा और कहा, यह वदा मेरे चिराग इश्क की किस्म है। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि एहसन का अगला कदम उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाला है जो उनके सब वादों को आजमाइश में डाल देगा। रात के सन्नाटे में वो पुरानी हवेली जैसे एक नए राज की गवाही दे रही थी। हिना के दिल में अजीब सा इज़्तिराब था, जैसे कोई पर्दा उठने वाला हो। रोशनी धुंधली थी, मगर दिल की धड़कनें तेज। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, और ठंडी हुआ के झोंके किसी पुरानी कहानी का लम्स लिए इसके गिर्द घूम रहे थे। अहमद आहिस्ता कदमों से आया, इसके चेहरे पर एक संजीदा सुकूत था। हिना, आज रात तुम्हें वो सब जानना होगा जो तुमसे बरसों छुपाया गया। हिना ने बेइख्तियार पलकें झपकाएं, क्या मतलब? अहमद ने जेब से एक पुराना कागज निकाला, इसके किनारे जर्द पड़ चुके थे। ये खत तुम्हारे वालिद ने अपनी मौत से पहले लिखा था, मगर तुम तक कभी नहीं पहुंचा। हिना ने खत थामने से पहले ही महसूस किया कि इसकी उंगलियों में कपकपाहट आ गई है। खत में लिखा था, बेटी, अगर ये खत तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो जान लो कि तुम्हारी जिंदगी का हर मोड़ एक मकसद के तहत रखा गया है। तुम एक आम लड़की नहीं, तुम्हारे अंदर वो चिराग जल रहा है जो नस्लों से महफूज किया गया। ये चिराग इश्क है, सच्चाई, कुर्बानी और रोशनी का। मगर याद रखो, ये चिराग तुम्हारे दुश्मनों की नज़र में सबसे कीमती खजाना है। इसको बचाना तुम्हारा फर्ज है। हिना के हाथ कांप रहे थे। ये सब? अहमद, क्या ये सच है? हाँ हिना,
और तुम्हें ये भी जानना होगा कि वो दुश्मन आज तुम्हारे करीब है। इससे पहले कि हिना कुछ पूछती, हवेली के बाहर से घोड़ों के तेज कदमों की आवाज आई। अहमद ने एक लम्हे में लालटेन बुझाई और हिना का हाथ पकड़कर एक खुफिया कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। ये कौन है? हिना ने सरगोशी में पूछा। वो लोग जिनके बारे में खत में लिखा था। बाहर दरवाजा जोर से बजा, जैसे किसी ने लात मार कर खोलने की कोशिश की हो। हवेली की दीवारों में गूंजती वो आवाज हिना के दिल में खौफ के कांटे चुभो रही थी। अहमद, अगर वो अंदर आ गए तो फिर हमें ये लड़ाई अभी शुरू करनी होगी। अहमद की आंखों में अजीब सी रोशनी थी। दरवाजा टूटा और लंबे काले कपड़ों में लिपटे 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में तलवारें थीं और आंखों में सर्द चमक। एक ने भारी आवाज में कहा, चिराग हमें दे दो, वरना तुम दोनों की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अहमद आगे बढ़ा, ये चिराग तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, चाहे जान चली जाए। हिना ने महसूस किया कि इसके दिल में एक अज़्म की लहर दौड़ गई। उसने चिराग इश्क को मजबूती से थाम लिया और फिर कमरे में रोशनी फैल गई। एक ऐसी रोशनी जो आम रोशनी नहीं थी, बल्कि गर्म, जिंदा और धड़कती हुई। वो तीनों हमला आवर आंखें छुपाते पीछे हटे, जैसे ये रोशनी उन्हें जला रही हो। अहमद ने मौका पाकर हिना का हाथ पकड़ा। चिल्लो, ये रोशनी हमारा हथियार है। दोनों अंधेरे राहदारियों से गुजरते हुए हवेली के पिछले हिस्से की तरफ भागे। पीछे से चीखों की गूंज आ रही थी। हवेली से निकलकर वो जंगल की तरफ बढ़े। हवा तेज हो चुकी थी और दरख्तों की शाखें शोर मचा रही थीं। हिना को लग रहा था जैसे हर पता, हर झोंका इसे किसी बड़े तूफान की खबर दे रहा हो। ये तो शुरुआत है हिना, अहमद ने कहा, असल लड़ाई अभी बाकी है। और इस रात चिराग इश्क की रोशनी जंगल के बीच ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने अंधेरे के दिल में उम्मीद का बीज बो दिया हो। शहर की शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। सर्द हुआ का लम्स जैसे हर शय को थपक कर सुला रहा था, मगर ज़ारा के दिल में तूफान अब भी थमाना था। वो छत पर खड़ी दूर आसमान के किनारे को देख रही थी, जहां धुंधले से चांद की रोशनी छन छन कर जमीन पर उतर रही थी। इसके कानों में अब भी अयान की वो बातें गूंज रही थीं जो उसने पिछली शाम कही थीं। वो बातें जो उम्मीद भी देती थीं और दिल में एक अजीब सा खौफ भी जगा देती थीं। अयान की आंखों में वो रात अजीब सा फैसला चमक रहा था। ज़ारा, अब वक्त आ गया है कि हम सब के सामने सच बोल दें, मगर ये सच इतना आसान न था। सच वो जंजीर था जो कई दिलों को तोड़ सकता था, कई रिश्तों को बखेर सकता था। ज़ारा के कदम जैसे जमीन में जड़ गए थे। नीचे सहन में खाला जरीना की आवाज आई। ज़ारा बेटा, नीचे आ जाओ, खाने का वक्त हो गया है। ज़ारा ने धीरे से सर झुकाकर जवाब दिया, जी खाला, बस आ रही हूं। वो जानती थी कि नीचे जाने का मतलब सवालात की बौछार है। खाला जरीना को अब भी शक था कि ज़ारा और अयान के दरमियान कुछ चल रहा है। उनकी आंखें अक्सर ज़ारा के चेहरे को इस तरह टटोलते जैसे इसकी आंखों से छुपे राज पढ़ लेंगी। खाने की मेज पर खामोशी छाई रही। अयान भी वहां मौजूद था, मगर दोनों ने नजरें मिलाने से गुरेज किया। ज़ारा की प्लेट में खाना था, मगर दिल कहीं और भटक रहा था। अचानक खाला जरीना बोल पड़ी, अयान बेटा, तुम कल रात कहाँ गए थे? मैंने तुम्हारे कमरे में देखा तो तुम नहीं थे। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, खाला, एक दोस्त की तबीयत खराब थी, इसी को देखने गया था। ये झूठ था और ज़ारा जानती थी, लेकिन वो कुछ न बोली। खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। ज़ारा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ने का बहाना कर रही थी जब खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक गई। पर्दा हटाया तो सामने अयान खड़ा था। इसकी आंखों में एक अज़्म झलक रहा था। ज़ारा, हमें अभी बात करनी है। ज़ारा ने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला। अयान कमरे में आकर आहिस्ता से बोला,
कल रात मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़ारा की आंखें भर आए। अयान, तुम नहीं जानते कि ये सब कितना मुश्किल है। हमारे दरमियान सिर्फ फासले नहीं बल्कि रुकावटें हैं, वो रिश्ते जो हमें बांधे हुए हैं। अयान ने इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। ज़ारा, मोहब्बत आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम डर गए तो सारी जिंदगी पछताएंगे। ज़ारा के लब कपकपाई। और अगर हमने सब कुछ खो दिया तो? अयान ने संजीदगी से कहा, तो कम अज कम हमने कोशिश तो की होगी। इसी लम्हे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। खाला जरीना दरवाजे के करीब आकर बोले, ज़ारा, सब ठीक है ना? ज़ारा ने जल्दी से कहा, जी खाला, मैं बस किताब पढ़ रही थी। कदमों की आवाज़ दौड़ चली गई मगर दिलों की धड़कन अभी भी तेज थी। अयान ने रुखसत लेते हुए आहिस्ता से कहा, कल रात पुरानी हवेली में मलना, वहां कोई नहीं आएगा। ज़ारा ने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया, मगर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ और बढ़ गया था। रात लंबी थी, नींद का कहीं नाम व निशान न था। ज़ारा के ज़हन में सवाल ही सवाल थे। क्या कल की मुलाकात सब कुछ बदल देगी, या फिर चिराग़ इश्क की ये लो हुआ के एक झोंके से बुझ जाएगी? चिराग़ इश्क की कहानी का ये आखिरी बाब एक ऐसे मोड़ पर शुरू हुआ जहां सब कुछ बिखरने और जड़ने के दरमियान मुअल्लक़ था। वक्त यादों के दरीचे में थमसा गया था। महक और फहद की जिंदगी में कई जख्म और कई दुआएं जिमी हुई थीं। बरसों की जिदोजहद, धोखे, कुर्बानियां और खामोशी सब अपने अंजाम के करीब पहुंच चुके थे। महक अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी शाम के धुंधलके को देख रही थी। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर पड़कर जैसे इसके दिल की धड़कन को नर्म कर रही थीं। वो फहद के कदमों की चाप को पहचानती थी, मगर आज वो चाप थकी हुई और धीमी थी। दरवाज़ा आहिस्ता सा खुला। फहद ने अंदर कदम रखा। इसकी आंखों में बरसों का बोझ और दिल में हजारों बातें थीं, लेकिन लबों पर खामोशी का ताला। हम जीत गए, महक, उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। ये जुमला महक के कानों में बिजली की तरह गूंजा। वो जानती थी कि ये जीत सिर्फ दुनियावी नहीं, बल्कि दिल और रूह की भी थी। वो सब जो कभी जुदा हो गए थे, आज एक दूसरे के पास लौट आए थे। लेकिन इस खुशी के पीछे कहानी की सबसे तल्ख हकीकत छपी थी। वो लोग जिन्होंने चिराग़ इश्क को बुझाने की हर कोशिश की, आज भी कहीं न कहीं मौजूद थे। मोहब्बत को जला देने वाले नफरत के शोले मुकम्मल तौर पर बुझे नहीं थे। इसी लम्हे फहद ने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। इसमें एक सादा सी चांदी की अंगूठी थी। ये हमारी कहानी का असल आगाज है, न कि अंजाम, उसने कहा। महक ने अंगूठी पहनी। इसकी आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। दूर मस्जिद से अजान की आवाज आई, जैसे रब ने खुद इस लम्हे को गवाही दी हो। बाहर बारिश तेज हो गई थी, मगर कमरे के अंदर मोहब्बत का चिराग पहले से ज्यादा रोशन था। ये चिराग अब किसी तूफान से बुझने वाला नहीं था। यूं चिराग़ इश्क की कहानी अपने आखिरी सफ़े पर नहीं बल्कि एक नए बाब के दरवाजे पर ख़त्म हुई, जहां मोहब्बत जीत गई और नफ़रत हार गई। रात का आखिरी पहर था। हवा में खुनकी थी, मगर दिलों में एक अजीब सा तूफान बरपा था। रोशनी के हल्के बादल चांदनी में मध्यम झलक रहे थे। सब कुछ पुरसुकून लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर कई दिल धड़क रहे थे। कई कहानियां अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थीं। माहम आहिस्ता आहिस्ता सहन में आए। इसकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर सुकून का एक हल्का सा साया भी था। बरसों की कश्मकश, जुदाई के जख्म और मोहब्बत की आजमाइशों के बाद आज इसे महसूस हो रहा था कि शायद चिराग़ इश्क वाकई अपना नूर बखेरने वाला है। अहमद सहन के दूसरे कोने में खड़ा था। उसने माहम को देखा तो कदम बेइख्तियार आगे बढ़ गए। दोनों के दरमियान बरसों का फासला था, मगर लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। माहम, अहमद की आवाज भारी मगर मोहब्बत से भरी हुई थी। माहम ने नजरें उठाईं,
उसकी पलकों पर एक बूंद लरस गई। अहमद, ये सब क्या वाकई खत्म हो गया? क्या हम अब आजाद हैं उन सब जंजीरों से जो हमें बांधे रखती थीं? अहमद ने आगे बढ़कर उसके करीब आकर कहा, हाँ, सब खत्म। अब न कोई खौफ, न कोई रुकावट, बस हम और हमारा इश्क। माहम का दिल चाहा वो रोने लगे। वो सब यादें, सब तकलीफें जैसे एक करके दिल से निकल रही थीं। लेकिन एक सवाल उसके दिल में अब भी बाकी था, लेकिन अहमद, वो सब कुछ जो हमने बर्दाश्त किया, वो सब जो हमें जुदा करने की कोशिश करता रहा, क्या हम वाकई इसे भला पाएंगे? अहमद ने इसका हाथ थाम लिया। माहम, इश्क कभी माजी से नहीं भागता, बल्कि इससे ताकत लेता है। जो जख्म हमें मिले, वही हमारे चिराग को जलाने का तेल है। इसी लम्हे पीछे से निदा की आवाज आए। निदा, वही जो कभी उनके बीच नफरत का बीज बोने आई थी, मगर आखिरकार खुद भी इस मोहब्बत के नूर में जल गई थी। इसकी आंखों में नदामत थी। अहमद, माहम, मैं मुआफी मांगने आई हूं। मैंने तुम दोनों के साथ जो किया, इसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मैंने सीख लिया है कि मोहब्बत को कैद नहीं किया जा सकता। माहम ने इसकी तरफ देखा। लम्हा भर को दिल में तलखी अलिफाबेर, मगर फौरन ही एक गहरा सुकून आतर आया। निदा, हम तुम्हें मुआफ करते हैं, क्योंकि अगर तुम ना होती तो शायद हम अपनी मोहब्बत की असल ताकत जान ही ना पाते। निदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों से आंसू पोंछे और आहिस्ता आहिस्ता चल दी। इसके जाने के बाद सहन में सिर्फ अहमद और माहम रह गए। चांद आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। अहमद ने माहम को अपने करीब कर लिया। माहम, आज से न कोई अंधेरा, न कोई जुदाई। आज से हमारा चिराग हमेशा जलता रहेगा। माहम ने अहमद के सीने पर सर रख दिया और आहिस्ता से कहा, हाँ अहमद, आज से ये चिराग इश्क हमेशा जलता रहेगा। हवा में खुशबू फैल गई, जैसे फिजा भी उनकी मोहब्बत का जश्न मना रही हो। कहीं दूर किसी कोने में एक पुराना चिराग जल उठा। वही चिराग जो बरसों पहले बुझने के करीब था, आज फिर अपने नूर से दुनिया को रोशन कर रहा था।